This Today's conference will now be recorded. Today's topic is file handling. Okay, file handling, right? And what is the meaning of this file handling? I am discussing now. File handling means that simply I'm just showing you a simple example, right? Just wait. I am showing you example. What is before the file handling, right? I'm showing you just a simple example. Just wait. I'm creating a list. Okay, empty list I'm creating for I in range. I took 4 or 3. I'm taking 4. I'm taking actually 3. I'm taking, and I'm taking one print statement, input statement, input, enter your name. Okay, I'm taking enter your name equal to. I'm taking one variable, and what I'm doing here, I'm L dot append, okay, and name. I am appending name inside the list. In other case, in range, no, I in L बोले तो list time, no, L I am taking only, LST I am taking, so LST, right? So print name, ठीक है, I'm printing this, right? I'm running this code. Just wait. Very simple code is this, and I'm running this code. Just wait. Desktop /12th and pyt h1 python learned learn.py. Okay, I run this code. It's asking enter your name. I input Arun. Next asking I input Divya. DIYA. Dia. Okay. Next one I'm inputting suppose Aman. Okay. And oh, sorry. I need to print I. Sorry, because the last name will be there. Sorry. I received one message by someone. Duplesh, I think all are I'm audible to all. तो आप अपने में चेक कीजिए बेटा, आपके में कोई प्रॉब्लम है शायद, क्योंकि बाकी सब लोगों को मैं ऑडिबल हूँ, जितने भी अभी लोग कनेक्टेड हैं सब लोगों के लिए मैं ऑडिबल हूँ. मे बी सम इशू विद यू. Check your mobile or disconnect the meeting and reconnect. Okay, maybe some issue is there. Okay, now I'm again putting name. I'm putting Arun Python web
DEVLOPME, development. DEVELOPME, development. Okay, so you can see all names are printed here, right? As I inputting the name, all names are printed. Agree now? Again, if I running, so I input some Aman, Rahul, Rohit. Okay. So here the all names are, right? But suppose if I remove this code, suppose, right? If I remove this code, or if I comment this code and I run this code, is it possible to print any name? Yeah, any name will be printed. Yes, everyone. I run this code only. I input some name and I run this code only. Nothing output. What is the reason behind this? कि अभी आपने कुछ नेम स्टोर किए इस वेरिएबल के अंदर और लिस्ट के अंदर आपने उनको डाल, आप उस लिस्ट से सारे नाम्स को प्रिंट करा रहे है ना? ये कोड समझ में आया कि नहीं? एनीवन? देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लिस्ट ली है, ब्लैंक लिस्ट ली है, उसके बाद मैंने लूप को चलाया है 3 बार, क्योंकि ये 0 से चलेगा, है ना? कहाँ से चले? 0 से। तो एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए, इसलिए 3 बार। जैसे ये 3 बार लूप चलेगा, कोड आपका 3 बार चलेगा। तो जैसे मैं एक नेम इनपुट कराऊंगा, मैंने क्या किया, जो मैंने एक ब्लैंक लिस्ट मैंने उसमें एक ब्लैंक लिस्ट दी, मतलब क्या होता है, ये खाली है। तो जैसे मैंने पहला नाम इनपुट किया, तो मैंने कह दिया सबसे पहले पहला एक ब्लॉक बनेगा और उसमें एक जाके पहले नाम जाके स्टोर हो गया, ठीक है? फिर मैं दूसरा नाम इनपुट किया वेरिएबल में, फिर मैंने उसको लिस्ट अपेंड का मतलब होता है बाद में किसी भी लिस्ट को इसके एंड में ऐड होते चला जाएगा। तो मैंने लिस्ट अपेंड नेम, फिर मैंने नेम डाला, तो तीसरा नेम जाके अपेंड हो गया, राइट? तो समझिए लिस्ट मेरी बन गई और लिस्ट को मैंने यहाँ पे एक एक एलिमेंट को यहाँ पर क्या कर लिया है, प्रिंट करा दिया है, ठीक है? ये वाली बात? Yes, I'm not getting response from your side, so it is feel like you are not able to listen, I'm not audible to all, maybe. हाँ, प्रॉब्लम हो रही है। Okay, yes, okay, that's good, so why you are not responding if I'm asking something? If my voice is audible to all, why you are not responding? Okay, now listen one thing that I'm saying कि मैंने यहाँ पे एक लूप यहाँ पर बनाया और यहाँ पर मैंने एक नेम इनपुट किया, उस नेम को मैंने लिस्ट के साथ अपेंड करता चला गया, तो एक लिस्ट बन गई। उस लिस्ट से मैंने एक एक एलिमेंट को यहाँ पर करा दिया है प्रिंट, ठीक है? एक एक एलिमेंट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स को प्रिंट किया है, राइट, वो मैं शो करना चाह रहा हूँ। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई डेटा तो यहाँ पर प्रिंट हो गया, राइट? इफ आई ओनली रन दिस कोड, राइट, if I only run this code, if I run, any output will be received? Is I am getting any output? Tell me. No output is there, huh? The reason behind is what? Ki whatever I'm storing inside the list, okay, no output. That's good. Your response must be required, guys, right? So if I do not receive anything, that means what? That means is
कि my program, this program, you know, we have a different type of memories, you know, different type of memories we have. List is blank. That's good, Anushka. And let's suppose, you know, we have a different type of memory. I have this memory that is, oh, sorry, wrong symbol I used. Yeah, now, okay. I have this memory, which is basically called RAM. Okay, RAM. You know, this type of RAM is there, right? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पिंस होते हैं, ठीक है। तो इस रैम के अंदर जो डेटा है वो हमारा स्टोर होता है बच्चों टेम्परेरी, है ना। ये टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है, टेम्परेरी, TEMP, टेम्प स्टोरेज, राइट, आई एम सेइंग टेम्प स्टोरेज, ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज है। अब इस स्टोरेज के अंदर ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारी जो फाइल है इस रैम के अंदर जाके स्टोर होगी पहले, और फाइल का हमारे का नाम है, दिस इज माय फाइल, ओके, इस फाइल का नाम है लर्न 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 डॉट डॉट पी वाई। ओके, फाइल का नाम क्या है, लर्न डॉट पी वाई। ये फाइल हमारी स्टोर्ड है यहाँ पर। एंड when we give some command and we give the command python, python, python space learn dot py, okay, when we give this command and enter, this file is executed. This file, actually this file is stored in some in hard disk, right? First we, when we create this file move to RAM। जब भी फाइल कोई रन होती है बच्चों, तो वो फाइल कहां पर मूव होती है, रैम के अंदर। समझ में आया, फाइल कहां पर मूव होती है, यहाँ पर थी हमारी फाइल, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, यहाँ पर थी हमारी फाइल, और यहाँ से कहां पर मूव होगी, रैम के अंदर, और यहीं पर ये फाइल हमारी एग्जीक्यूट होगी। समझ में आ रहा है, एग्जीक्यूट। जो भी हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे यहाँ पर रन होंगे रैम के अंदर। हमने कोई भी नाम इनपुट कराया, कुछ भी, ये इंस्ट्रक्शंस जो ये मेरी फाइल है, ये फाइल भले ही बच्चों सेव है हमारी हार्ड डिस्क में, है ना, क्योंकि ये सी ड्राइव के किसी 12th नाम के फोल्डर में जाके सेव है ना। तो भले ही मेरी फाइल किसी हार्ड डिस्क में स्टोर है, लेकिन जब इस फाइल को रन किया जाता है तो ये फाइल बच्चों आती है रैम के अंदर, ठीक है, और यहीं पे एग्जीक्यूट होती है। और रैम हमारा कैसा स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज है। रैम इज व्हाट, टेम्परेरी स्टोरेज। आई कैन, अगर मैं इस फाइल को, अभी मैंने फाइल को यहाँ पे मैंने कुछ इनपुट ले लिया, और इनपुट लेने के बाद मैं इस फाइल को दोबारा से एग्जीक्यूट करूं, तो मुझे हर बार नया इनपुट देना पड़ेगा। मैं पुराने इनपुट को, जो पुराना डेटा मैंने यहाँ पर इनपुट किया था, उस डेटा को मैं एक्सेस नहीं कर सकता। एक्चुअली दिस इज द रीजन बिहाइंड we required storage, we required permanent storage, ठीक है। so many places we require permanent storage। आप देखिए कि अगर कोई भी एप्लीकेशन है आपके पास, ऐसा तो होगा नहीं कि वन टाइम आपने डेटा इनपुट किया, कल उस डेटा की कोई नीड ही नहीं है, कल वो डेटा है ही नहीं, या अभी आपने उस एप्लीकेशन से बाहर आए वो डेटा आपका चला गया, ऐसा तो हमें चाहिए नहीं। डेफिनेटली कोई भी कंपनी अगर आपसे कोई एप्लीकेशन बनवाएगी, कोई चीजें बनवाएगी, तो वो ये चाहेगी कि वो डेटा परमानेंटली स्टोर हो, इन फ्यूचर में जब आप कभी उस डेटा को एक्सेस करना चाहें तो उस डेटा को आप एक्सेस कर सकें। अभी आप फोन लिस्ट यूज करते हैं, आप फोन बहुत सारे मोबाइल के साथ आप किसी को कॉल करते हैं, तो आप जब एक बार उस नंबर को डायल कर देते हैं, वो नंबर आपका आपके फोन लिस्ट में, गैलरी में हो जाता है सेव, सॉरी, फोन लिस्ट में हो जाता है सेव, कॉन्टेक्ट लिस्ट के साथ। जब तक सेव रहेगा, जब तक आप उसे मैन्युअली डिलीट ना करें। या फिर एक और टेक्निक जनरली लगाई जाती है कि रिसेंट जो कॉल्स होती हैं, कि पिछले एक महीने की कॉल्स, जो एक महीने पुरानी जो कॉल होगी वो अपने आप से डिलीट हो जाएगी। ऐसा भी कुछ फोन्स के अंदर कंसेप्ट होता है। लेकिन मान लेते हैं कि फिर भी जब तक आप उसे खुद से डिलीट ना करें, तब तक वो फाइल, वो आपका नंबर आपके फोन के अंदर रहता है सेव, राइट। तो मेरे को भी कुछ ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं कुछ नाम इनपुट कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पर मैं कुछ नेम इनपुट कर रहा हूं, और वो जो नेम है वो जैसे मैं इनपुट कर रहा हूं, जब तक प्रोग्राम है
जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है, जब तक मैं इस प्रोग्राम के अंदर हूँ, मैं कितनी बार भी उन नेम्स को प्रिंट करा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे नेम्स को 1 by 1 नेम्स को प्रिंट कराया। मैं मान लेता हूँ कि मुझे फिर से नेम चाहिए, तो मैं इसको लिस्ट फॉर्म में प्रिंट करा लेता हूँ। तो आई प्रिंट लिस्ट हेयर, जस्ट वेट, LST, आई प्रिंट लिस्ट हेयर, राइट। तो दिस इज पॉसिबल, नो प्रॉब्लम। बट जब तक ये काम तभी तक आप कर सकते हैं जब तक आप इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जब तक आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिस्ट प्रिंट कर लिया, यहाँ पर मैंने ये कर लिया, लेकिन if I remove this, if I remove this concept, this inputting, ये जो input method है, ये input जो मैंने यहाँ पे instructions लिखे हैं, अगर मैं ये हटा दूं तो क्या होगा? तो होगा ये, I cannot print anything, because जो मेरा डेटा था वो तो केवल रन टाइम के लिए था, वो डेटा कभी सेव ही नहीं हुआ था, है ना। जो जो मेरा डेटा था वो कैसा था? केवल रन टाइम के लिए था, वो डेटा कभी सेव ही नहीं हुआ था। नाउ माय रिक्वायरमेंट इज एनीथिंग, एनीथिंग लाइक, जैसे अभी हमने प्रोजेक्ट की बात की, अगर आप उस प्रोजेक्ट को बच्चों कंप्लीट कर लेंगे तो उस प्रोजेक्ट को आप फिर फाइल हैंडलिंग के साथ वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि सपोज जो हमने प्रोजेक्ट बनाया उसमें हमने बच्चों के नाम अभी पहले से फिक्स है, हम ये चाहेंगे कि जो भी हम डेटाबेस वहां पर बना दें, जो भी बच्चों का नाम हम वहां पर रख दें, वो सारा डेटा उन बच्चों के लिए हमारा क्या हो जाए? स्टोर हो जाए। गेटिंग? सारा डेटा क्या हो जाए वहां पर? उन बच्चों के लिए हमारा स्टोर हो जाए, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो नाउ सेम थिंग इज हियर कि जब भी मुझे नीड है उस डेटा को एक्सेस करने की, कि भाई मैं पर्टिकुलर रोल नंबर सर्च करना चाहता हूँ, मैं पर्टिकुलर बच्चे का रिजल्ट देखना चाहता हूँ, या मैं पर्टिकुलर बच्चे की इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं वो सारी चीजें वहां पर गेट कर सकूं, वो सारी चीजें मैं ले सकूं। दिस इज माई मेन रिक्वायरमेंट, ओके। तो दिस इज द फाइल हैंडलिंग, कि जहां पर हम डेटा को टेम्परेरी नहीं, हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर रहे हैं, कि डेटा जब भी हमें जरूरत हो उस डेटा को हम यूज कर सकें, उस डेटा को हम एक्सेस कर सकें। ऐसे नहीं कि वन टाइम जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है हम डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, जैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से बाहर आया हम उस डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज द मेन थिंग वी रिक्वायर्ड फाइल हैंडलिंग, ठीक है। वन मोर थिंग आई एम शोइंग यू, जस्ट डोंट फोकस ऑन द कोड, just see, just only see, just see, open test.txt, comma w. I am taking a file. Next I am taking file dot write. Programmers. Okay. And file dot. Okay. I run this code just for checking purpose. Okay, it's done. Let me check. देखिए यहाँ पर एक फाइल बनी है टेस्ट नाम की, और देखिए इसके अंदर डेटा है हेलो प्रोग्रामर्स, है ना। अब आप ये समझिए कि ये जो मैंने फाइल बनाई,
ओके ये जो फाइल मैंने बनाई, इस फाइल का डेटा परमानेंटली स्टोर हो गया। अब देखिए मैंने अभी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे, मैंने अभी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे, और इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे आपने देखिए, अभी देखिए यहाँ पर मेरे इस फोल्डर के अंदर देखिए, क्योंकि मैंने इसी फोल्डर का पाथ दे रखा है, मेरे इस फोल्डर में देखिए मैं ये फाइल अभी रहने देता हूँ, मैं कोई दूसरी फाइल ले लेता हूँ ना, मैं एक और फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे फाइल का नाम ले लिया मैंने जून 3, राइट, 03, राइट, एंड आई एम राइटिंग we are working on files, we are working with files, right, मैंने इसको सेव किया एंड आई रन दिस कोड। एक्चुअली आउटपुट पे कुछ नहीं है, मैं वो नहीं शो कर रहा। देखिए यहाँ पर अभी मेरी जून 3 के नाम से देखिए कोई फाइल नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर कोई फाइल है? यहाँ पर क्या कोई फाइल है जून 3 के नाम से? नहीं है ना, कोई फाइल नहीं। let me run this file like, yeah, and you can see when I run this code, एक फाइल बनी यहाँ पर, yes, जून 3 के नाम से, और उसके अंदर डेटा क्या है? we are working with files, यही डेटा तो मैंने रखा था, है ना। अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, अभी मैंने सिर्फ आपको फाइल से राइट, मतलब सिखाया भी नहीं है, जस्ट मैंने एक डेमो दिया कि हम फाइल से हमने कुछ डेटा राइट कर दिया। और ये आप देख रहे हो कि जब तक मैं इस फाइल को डिलीट नहीं करूंगा, जब तक मैं ये जून 3 नाम की फाइल को डिलीट नहीं करूंगा, जब तक मैं ये टेस्ट नाम की फाइल को डिलीट नहीं करूंगा मैनुअली, तब तक मेरा डेटा इस फाइल में परमानेंटली सेव रहेगा। एग्री ना? समझ में आ रही है बात? कि तब तक मैं इस फाइल को डिलीट नहीं करूंगा, तब तक ये मेरा डेटा परमानेंटली इसमें सेव रहेगा। और मैं जब चाहूँ इस फाइल को रीड भी कर सकता हूँ, वो अभी हम जब आगे बढ़ेंगे इसमें सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल जस्ट आई एम गिविंग यू सम डेमो कि अब यहाँ पर मैं इस डेटा को परमानेंटली सेव कर पा रहा हूँ। दिस इज बेसिकली द फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट, है ना, कि अब मेरा डेटा फाइल के अंदर सेव हो रहा है और मैं जब चाहूँ उस डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, बशर्ते मैं उस फाइल के जिसके अंदर मेरी डेटा फाइल है उसको मैं डिलीट ना करूँ। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट, ये मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई कि वाई फाइल हैंडलिंग रिक्वायर्ड। फर्स्ट मैंने आपको दिखाया कि भाई अगर हम डेटा को परमानेंटली सेव नहीं कर रहे हैं तो उस डेटा को मैं इन फ्यूचर एक्सेस नहीं कर सकता। अब फ्यूचर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा तो मैं उस डेटा को यूज भी नहीं कर पाऊंगा, है ना, वन टाइम यूज हो जाएगा बस, कि भाई मैंने कुछ डेटा, बहुत सारा डेटा इंप्लीमेंट किया, मैं उसको कभी रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करने की, कुछ भी करने की। और आजकल आप देखते हो कि विदाउट डेटा मैं मोबाइल डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करते हो आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हो, चाहे वो आपके मोबाइल में फोन नंबर हो, चाहे वो यूट्यूब पे पड़ी हुई आपकी वीडियो हो, चाहे मैं जो डेली रिकॉर्डिंग वीडियो आपको भेजता हूँ, चाहे वो आप कहीं कंसेप्ट भूल गए, आपको याद है कि सर ने उसमें बताया था, चलिए जल्दी से वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? ऐसा होता है कि भाई अब भूल गए तो आप अगले दिन मेरे से क्वेश्चन पूछते, मैं दोबारा इस टॉपिक को बताता, सेम टॉपिक को दोबारा बताता। तो अभी क्या हो रहा है कि आप मैं डेटा यूज कर रहा हूँ, उस डेटा जो हम डेटा हम वहां पर ले रहे हैं, उस डेटा को हम यूज कर पा रहे हैं, है ना, फर्दर यूज कर पा रहे हैं, डेटा को परमानेंटली स्टोर कर पा रहे हैं। रन टाइम नहीं है हमारी क्लासेस। तो अब हम फाइल हैंडलिंग की हम बात करें तो फाइल हैंडलिंग तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दिस इज द वे टू स्टोर डेटा permanently in files, right? According to Python, there are two types of file. One is text file and another is binary file. अब क्वेश्चन ये है कि सर टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल क्या है ना। तो टेक्स्ट फाइल बच्चों जो फाइल है वो टेक्स्ट डेटा स्टोर करती है, ठीक है, टेक्स्ट डेटा में अब ऐसा नहीं है कि सर केवल कैरेक्टर स्टोर होगा 1 to Z, कुछ भी जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, कुछ भी, चाहे वो न्यूमेरिकल डेटा हो, चाहे वो अल्फाबेटिकल डेटा हो, चाहे वो हिंदी का डेटा हो, किसी भी फॉर्म में वो डेटा हो, बस वो कैसा डेटा होना चाहिए? टेक्स्ट डेटा होना चाहिए, ग्राफिक्स उसके अंदर नहीं होना चाहिए। वो सब कुछ हमारा स्टोर रहता है टेक्स्ट फाइल में। और एक और जो अभी मैंने फाइल बनाई, जो मैंने अभी फाइल बनाई बच्चों, वो कैसी फाइल थी? टेक्स्ट फाइल थी। जैसे मैं इस फाइल को ओपन करूंगा तो आप देख पाएंगे कि इस फाइल के अंदर मेरा जो भी डेटा है, इस फाइल के अंदर जो मेरा डेटा है उसको आप इजीली रीडेबल फॉर्म में है, या आप आसानी से आप इस फाइल को ओपन करें। अगर आप किसी पाइथन प्रोग्राम का भी यूज ना करें इस फाइल को पढ़ने के लिए, हमने राइट करने के लिए तो डेफिनेटली एक पाइथन प्रोग्राम का यूज किया है इस फाइल को। मैं डायरेक्टली भी राइट कर सकता था, बट मैंने पाइथन प्रोग्राम का यूज किया इस फाइल को राइट करने के लिए। तो अगर आप एक पाइथन फाइल का भी यूज ना करें इस फाइल को रीड करने के लिए, तब भी आप इस फाइल का डेटा आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बाइनरी फाइल की, तो बाइनरी फाइल के अंदर बच्चों आप टेक्स्ट तो डेटा रख ही सकते हैं, यू कैन
store text data, as well as you can store image, you can store audio, you can store video, you can store CSV content, PDF form. Okay, so different type of data you can store in the binary file. जो भी बच्चों आपका डेटा होता है, चाहे वो वीडियो है चाहे ऑडियो है, सब कुछ बाइनरी फॉर्मेट में इंटरनली स्टोर किया जाता है एंड आपको फिर फाइनली जब उस बाइनरी कोड से डिकोड करते हैं फिर आपको वो डेटा शो होता है, आपको, मुझे, सबको। तो एक ये दो कंसेप्ट हैं पाइथन जिनको सपोर्ट करता है, एक टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, बाइनरी। दोनों में डिफरेंस ये है कि वहां पर केवल हम टेक्स्ट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, बाइनरी में हम डिफरेंट टाइप का इमेज, ऑडियो, वीडियो, CSV, है ना, एंड टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट डेटा तो कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डेटा होगा वो डेटा फाइल के अंदर स्टोर किया जाएगा बच्चों बाइनरी फॉर्म में, और उस डेटा को डायरेक्टली, जैसे मैंने भी एक टेक्स्ट फाइल आपको ओपन करके दिखाई, दिस इज टेक्स्ट फाइल, अगर मैं इसको बाइनरी फाइल बनाता तो डायरेक्टली ये डेटा मेरा रीडेबल नहीं होता, ये कुछ अलग फॉर्म में मुझे डेटा शो करता, यहाँ पे अलग सिंबल्स होते हैं और वो मेरे लिए डेटा रीडेबल नहीं होता। तो यानी कि बाइनरी का एक और फायदा है कि हम डेटा को बाइनरी फॉर्म में रखेंगे तो डायरेक्टली अगर फाइल को हमारी कोई ओपन कर भी ले तो वो हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक पाइथन प्रोग्राम ना बनाया जाए। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। अब केवल यही दो चीजें नहीं है डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, एक और है जो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, दैट इज डेटाबेस, राइट? दैट इज व्हाट डेटाबेस कंसेप्ट। तो डेटाबेस हम लोगों ने पढ़ा है MySQL, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, 11th क्लास में हम लोगों ने उसको पढ़ा था। तो वो डेटाबेस में भी उस डेटाबेस को हमारी पाइथन की फाइल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, कनेक्टिविटी बता दी जाती है, बना दी जाती है, और फिर फाइनली डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। ये दोनों जो बच्चों, ये दो मोड हैं, ये सिक्योर मोड नहीं है ना। मतलब छोटे लेवल के लिए तो ठीक है, एक छोटा हमने, जैसे एक छोटा सा मैंने प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया था, वहां तक के लिए तो बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उस लेवल तक काम करेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक पूरे स्कूल के लिए प्रॉपर वर्किंग करता हुआ हमें एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना है जहाँ पे 1000-2000 लोगों का, 3000 बच्चों का डेटा, क्या नाम है, मैनेज किया जाए, तो वहां पर ये बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, ये इतना ज्यादा डेटा को लोड नहीं कर पाते। तो वहां पर फिर हमें जरूरत पड़ती है डेटाबेस की। प्लस फाइल से डेटा, मेरा सपोज फाइल किसने डिलीट कर दी है ना, सिंपल है, पीसी खोला, फाइल डिलीट हो गई, करप्ट हो गई, तो उस डेटा को रिकवर करने का कोई कंसेप्ट नहीं होता। डेटाबेस में ही सारी फैसिलिटी होती है कि आप डेटा को रिकवर कर सकें, डेटाबेस को मेंटेन कर सकें, है ना। और डेटा, ये इस फाइल को आप डायरेक्टली डेटाबेस को डिलीट भी नहीं कर सकते, तो इसको आप सिक्योर कर सकते हो बाय हेल्प ऑफ पासवर्ड। आपको याद होगा कि MySQL पर हम एक पासवर्ड सेट करते थे, याद है? वो पासवर्ड अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हम डेटाबेस को डायरेक्टली ओपन भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि डेटाबेस को डिलीट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड उसको कर सकते हैं। और भी लॉट्स ऑफ फीचर्स डेटाबेस हमें प्रोवाइड कराता है। बट इन स्टार्टिंग वी गो थ्रू विद टेक्स्ट फाइल, कि टेक्स्ट फाइल के को किस तरह से डेटा को स्टोर करते हैं, कैसे डेटा को रीड करते हैं। then we move to the binary, and finally when we do the website development in our as a project, right? जब हम वेबसाइट को बनाना सीखेंगे या वेबसाइट डेवलपमेंट हम लोग करेंगे, तब वहां पर मैं आपको डेटाबेस के साथ कैसे काम किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों? तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल कि हाउ डेटा मैनेज, what is the basic requirement of the file handling, okay, why we required फाइल हैंडलिंग, एंड किस टाइप के सपोर्ट पाइथन हमें प्रोवाइड कराता है। डेटा को स्टोर करने के लिए हम टेक्स्ट फाइल यूज कर सकते हैं, हम बाइनरी यूज कर सकते हैं, एंड द एक्सट्रीम जो एक एंटरप्राइज लेवल पे यूज किया जाता है, जो एक्चुअल में सही कंसेप्ट है डेटा को स्टोर करने के लिए, दैट इज व्हाट डेटाबेस, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, पाइथन के साथ। तो फाइल हैंडलिंग इट्स ऑल अबाउट द, दिस इज नॉट ए डेटाबेस कंसेप्ट। फाइल हैंडलिंग को हम डेटाबेस को हम फाइल हैंडलिंग के साथ मर्ज नहीं करेंगे। फाइल हैंडलिंग इज जस्ट अबाउट how to store the data in binary file as well as in text file. Database is different connection, right? Different way, different term basically. Okay, but yes, possible to connect with the Python language, no problem at all, right? So this is a basic introduction of file handling, why we required, and what is actually the benefits of the file handling, which type of file we can use inside the file. Okay, so this is basic requirement.
and next to the next point, next level is what, कि generally in any project आप किस तरीके से डेटा को मैनेज करते हैं। देखिए बेसिक ऑपरेशंस मैंने आपको बताता हूँ, बेसिक ऑपरेशंस ऑन फाइल। वो बेसिक ऑपरेशंस क्या है, आप फाइल को क्या करते हैं, फाइल के अंदर डेटा राइट करते हैं। तो मैंने अभी राइट किया, एक लाइन मैंने राइट की, हेलो प्रोग्रामर्स, हेलो टू ऑल, है ना। दूसरा एक कंसेप्ट होता है कि जो डेटा आपने वहां पर राइट किया है, मे बी सम रिक्वायरमेंट, यू नीड टू रीड दैट डेटा, ओके, मे बी यू नीड टू search that data, okay, maybe you need to remove, right, this is basic, or maybe modify, right। देखिए रीड, राइट, सर्च, रिमूव, मॉडिफाई, ये बेसिक 5 ऑपरेशन है। मॉडिफाई का मतलब क्या हुआ, रीड, फर्स्ट रीड देन राइट, यही तो हुआ। आपने कुछ एक नंबर निकाला मोबाइल का अपने कॉन्टेक्ट्स में, तो पहले आप क्या करोगे, उसे सर्च करोगे। रीड का मतलब मेरा यहाँ पे सर्च से है ना, कि आपने एक पर्टिकुलर नंबर पहले सर्च किया, रीड किया, और फिर जो नए चेंजेस करने थे वो आपने राइट कर दिए। तो ये रीड और राइट हमने यहाँ पर ही कंसीडर कर लिया, फिर भी मैंने लिख दिया। रिमूव एक डिफरेंट है कि जो मेरा डेटा ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में है उसको मुझे डिलीट करना है, हटाना है यहाँ से। रिमूव एक कंसेप्ट है। फिर एक कंसेप्ट है सर्च। डेफिनेटली ये फिर से रीड का कंसेप्ट हो गया कि मुझे बहुत सारा डेटाबेस है, उसमें से पर्टिकुलर कीवर्ड के हिसाब से डेटा सर्च करना है, तो दैट इज पॉसिबल, सर्च मैंने कर लिया। एंड उसके बाद रीड और राइट, ये मेन ऑपरेशन है। तो बेसिक ये 5 ऑपरेशन हैं जो आप किसी भी एप्लीकेशन पे जर्नली अप्लाई करते हो, है ना। उसके बाद डेटा को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना, ये सब एडिशनल पार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसी एक सिंपल डेटाबेस कनेक्शन की, तो हमें ये 5 ऑपरेशन करने हैं, रीड करना है डेटा, राइट करना है, सर्च करना है। कुछ डेटा हम रिमूव कर सकते हैं, या मेरा जो एग्जिस्टिंग डेटा है, जो ऑलरेडी मेरा डेटा वहां पर पड़ा हुआ है, उस डेटा को मैं करना चाहता हूँ मॉडिफाई, मैं करना चाहता हूँ उस डेटा को चेंज, राइट। कि भाई मेरा एडमिशन नंबर गलत हो गया, मेरा नाम गलत हो गया, मेरा फादर्स नेम गलत हो गया, है ना। आप लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी मेरे पास कि सर हमारा एप्लीकेशन पे ना ये वाला डेटा, ये वाला नंबर नहीं है, हमारी एप्लीकेशन लॉगिन नहीं हो रही, आप हमारा नंबर ये वाला हटा के ये वाला कर दीजिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, मॉडिफाई तो है। ऑलरेडी मेरे पास डेटा है, मैंने उस डेटा को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, राइट, सिंपल, राइट। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट एक्चुअली, है ना। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम फाइल पर अप्लाई करेंगे, है ना। और टेक्स्ट फाइल पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो हम केवल उतना ही टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड काम करेंगे। बाकी टेक्स्ट फाइल का यूज नहीं होता है बच्चों, यूज होता है आपका बाइनरी फाइल का, या फिर लेटर ऑन डेटाबेस का, राइट। तो ये हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट फाइल पे बहुत लिटिल बिट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, लिखना, रीड करना, राइट करना, और उसके बाद करेक्टर वेक्टर काउंट, ये बेसिक से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस वी वर्क ऑन इट। इज इट क्लियर? सो that's all about my side of today. Any question? Yes, anyone? Okay, I receive one message. No, okay, good. Anyone else? Okay, okay, then bye bye, see you tomorrow at same time. Take care, good night.